Good evening. I am Dr. Anchit Uppal, working here at Sarvodaya Greater Noida West as Senior Consultant and Head Department of Orthopedics and Joint Replacement. I welcome you all to this Facebook Live session on osteoporosis and bone health. Basically, what is osteoporosis? Medically, it is defined as progressive skeletal disorders characterized by decreased in bone mass, which increases bone fragility and susceptibility to fracture. तो बेसिकली ये होता क्या है? ये इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें हमारी हड्डी खोखली होना स्टार्ट हो जाती है। जब हमारी हड्डी खोखली होने लग जाती है, जैसे कि आप अब इस प्रेजेंटेशन के थ्रू देख पाएंगे, हमारी हड्डी नॉर्मली एक गठा हुआ स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे वो हड्डी खोखली होती जाती है, वैसे वैसे वो और प्रोन होती जाती है फ्रैक्चर्स के लिए। इस प्रॉब्लम को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये होता क्यों है? बहरहाल, हम जैसे ही पैदा होते हैं, जब तक हमारी जिंदगी है, हमारे शरीर में दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। एक है जिसका नाम है बोन फॉर्मेशन एंड सेकेंड इज बोन रिजॉर्प्शन। फ्रॉम द टाइम ऑफ birth till around 16 years, bone formation is more than bone resorption. Until about 16 years, then they become in an equilibrium. फिर उसके बाद जब bone resorption rate is more, तब bone हल्की खोखली होना स्टार्ट हो जाती है। And we can see as it goes on becoming more and more resorbed, वो हल्की हो जाती है, टूटने के लिए और ज़्यादा prone हो जाती है। This is what is osteoporosis. And why it is important? Because it has now become a very widespread public health problem, क्योंकि it affects people of all ethnicities and both the sexes are involved. And osteoporosis आज की डेट में is divided into two groups, primary and secondary. Primary basically is type 1, which is in postmenopausal females, which happens in females after the age when they have attained menopause and उससे 10-15 साल के बाद। जबकि टाइप 2 इज senile osteoporosis, which happens because of aging. सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस अंडरलाइंग पैथोलॉजीज के कारण। इन सभी प्रॉब्लम्स में बोन टर्नओवर ज़्यादा होने के कारण बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, जिस कारण से वो खोखली होने लग जाती है एंड इट बिकम्स मोर प्रोन फॉर फ्रैक्चर्स। ये होता सब इसलिए है बिकॉज हमारे हड्डी में बेसिकली कैल्शियम जो है, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द मसल्स ऑफ द हार्ट। एंड हड्डी के अंदर का जो कैल्शियम है, दैट इज अ रेडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ कैल्शियम का स्टोर हाउस एक्ट करता है, जहाँ से वो रिजॉर्ब होके ब्लड में आता है और बाकी सारे ऑर्गन्स में जा सकता है। And it is tightly regulated by a number of hormones including vitamin D as well. तो जब भी ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, उसके साथ पेशेंट हमारे पास जब भी आते हैं तो उनको मेन प्रॉब्लम जो होती हैं वो ये होती है कि डिफ्यूज बोनी पेन्स हो रही होती हैं बिटवीन +1 to -1 is considered as normal. -1 to -2.5 is considered low bone mass, जहाँ पे हड्डी टूटने की क्षमता कम हो रही है, हड्डी खोखली हो रही है, and less than 2.5 is osteoporosis. With each change in color, there is a 10-fold increase in fracture risk. तो जब भी ये हमारे पास पेशेंट्स आएंगे तो हम नॉर्मली इनको ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। सो व्हाट आर द यूनिवर्सल रिकमेंडेशंस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस? इट इज बेसिकली it is the universal recommendations are increased vitamin D। पीछे जाएंगे हम, आगे नहीं, पीछे जाएंगे, पीछे एक और पीछे जाएंगे। The universal recommendations are normally you need to take adequate intake of vitamin D and calcium with
lifelong regular weight bearing and muscle strengthening exercises to an extent कि सिर्फ at least half an hour of brisk walking is adequate for your bones, which is again good for your heart as well as treating your diabetes. Along with, you should stop smoking and alcohol. And from the orthopedic point of view, the most important thing is prevention of falls, ताकि फ्रैक्चर ना हो एंड आगे के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाला फ्रैक्चर ना हो. तो जब भी मेरे पास पेशेंट आता है, मेरा सबसे पहला सुझाव पेशेंट के लिए होता है डाइटरी मॉडिफिकेशन. So this is the thing which I give to all my patients who come for management, is how to manage and plan their diet so that they have adequate intake of vitamin D and calcium. Normally age के हिसाब से आपकी बॉडी को कुछ certain requirement of calcium बॉडी में रहता है, वो हर एज ग्रुप में वेरिएबल है विटामिन डी के साथ. So this is what I normally recommend to my patients. So once this is recommended, next thing comes to pharmacological therapies, जिसमें हम दवाइयाँ बोलते हैं. And basic thing which probably आप सब लोग लेते भी रहते हैं is calcium supplementation, which is now available over the counter as well. तो बहुत important चीज जो आप लोगों को समझ में ध्यान में रखना चाहिए is कैल्शियम बेसिकली दो तरह से अवेलेबल होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, एक कैल्शियम सिट्रेट की फॉर्म में. तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है आप ओवर द काउंटर परचेज करते हैं, तो नॉर्मली हमें जो कैल्शियम लेना रहता है इज अराउंड 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स रहती है. कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वन हैंड इज अ सप्लीमेंट जिसमें कैल्शियम की क्वांटिटी फॉर एक्स अमाउंट इज मोर कंपेयर टू कैल्शियम सिट्रेट. 1000 ग्राम्स ऑफ अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, उसमें हमें 400 मिलीग्राम का कैल्शियम मिल जाएगा एलिमेंटल, बट कैल्शियम सिट्रेट 1000 में से हमें सिर्फ 210 ही मिल रहा है. तो फॉर अ गिवन टैबलेट ऑफ कैल्शियम सिट्रेट हमें ज़्यादा बायोलॉजिकली अवेलेबल हो जाता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज, आप लोग जैसे कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं, बहुत कॉमन कंप्लेंट्स जो पेशेंट्स मुझे करते हैं कि ये खाने के बाद हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है. दिस इज मोर कॉमन विद कैल्शियम कार्बोनेट. तो द बेस्ट ऑप्शन इज ईदर स्विच टू कैल्शियम सिट्रेट. And third important thing is absorption, which for calcium carbonate is in acidic environment. तो ये खाने के साथ लेना चाहिए, जबकि कैल्शियम सिट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर एसिडिक एनवायरनमेंट, तो इसे आप कभी भी ले सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली व्हाट यू शुड रिमेंबर व्हेन यू आर टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट. एंड कैल्शियम सप्लीमेंट अकेला इज नॉट सफिशिएंट आपकी हड्डी तक खाए हुए कैल्शियम को ले जाने के लिए. आपको साथ में वहां तक हड्डी तक पहुंचाने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, अलॉन्ग विद विटामिन K2 एंड कोलेजन पेप्टाइड. बट आजकल बहरहाल जितनी भी मेडिसिन आती हैं उनमें ये सब सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग वेयर हम ऑस्टियोपोरोसिस में स्टार्ट करते हैं. जैसे जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी खोखली होती जाती है, हमें दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं. सबसे पहले हम बिस्फॉस्फोनेट्स यूज करते हैं, जो ओरल फॉर्म में भी आती है, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार लेने वाली, या इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी आती है जो हम साल में एक बार लगा सकते हैं. स्पेशली फीमेल्स पोस्ट मेनोपॉजल में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में भी बात करते हैं. वो चाहिए होती है सिर्फ फीमेल्स में जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस अधिक हो गई है. एंड मेरे पेशेंट्स जो स्पेशली पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं, उनमें मैं चाहता हूं कि मैं अपने पेशेंट्स को इंजेक्शन सच एज टेरीपेराटाइड विच इज अ पीटीएच एनालॉग एंड डेनुसुमाब जो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, these are given to improve the quality of bone so that bone healing happens fast. तो ये वाली चीज़ें कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं. तो ये मेरे लिए एज अ ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है? ये मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के,
उनमें सबसे कॉमन जो बीमारी के कारण फ्रैक्चर्स होते हैं, दे आर ईदर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, या रिस्ट का फ्रैक्चर, कमर का फ्रैक्चर, या कूल्हे का फ्रैक्चर होना। तो इन फ्रैक्चर्स के लिए आप जैसे जैसे आपकी ऑस्टियोपोरोसिस होती जाती है, आप इन फ्रैक्चर्स के लिए प्रोन होते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोन होते जा रहे हैं, तो इस तरह से आपकी मैनेजमेंट भी हमें चेंज करनी पड़ती है। क्यों मुझे ध्यान रखना पड़ेगा? ये जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टल रेडियस या रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ है, एक 16 ईयर फीमेल में ये फ्रैक्चर अगर होता है, विच कैन हैपन बिकॉज ऑफ अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसे मैनेज करने के लिए मैं सिंपल रिड्यूस करके इसको 2 तारों के जरिए स्टेबलाइज कर सकता हूँ। बट जब यही फ्रैक्चर एक 77 ईयर ओल्ड फीमेल में हो जाए, वो मुझे पता है कैन हैपन नॉट बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी, सिंपल बिकॉज ऑफ लो वेलोसिटी, सिंपल गिरने के कारण भी ये फ्रैक्चर हो सकता है बिकॉज हड्डी खोखली है, इट इज ऑस्टियोपोरोटिक। अब मुझे इसे फिक्स करना है, तो इवन विद अ 2 पिन आई कैनॉट फिक्स इट। इट इज समथिंग सिमिलर टू जैसे दीवार में आपको कील ठोकना है, अगर हड्डी या दीवार खोखली हो तो कील ठोकने की बजाय हमें गिट्टी लगा के कील ठोकना पड़ता है, उसी तरह ताकि होल्ड प्रॉपर आए। उसी तरह मुझे भी यहाँ पे 2 पिन्स लगाने की बजाय मुझे वो पूरी प्रॉपर प्लेट लगानी पड़ेगी ताकि वो उसको प्रॉपरली होल्ड कर सके। सेम फ्रैक्चर व्हेन इट हैपेंस इन द स्पाइन, तो उस टाइम हमें ये वाली चीज को स्टेबलाइज करने के लिए इन ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स हमें बोन के अंदर सीमेंट भरना पड़ता है ताकि वो स्टेबल हो जाए और हड्डी कोलैप्स ना होती जाए। थर्ड मोस्ट कॉमन प्लेस टू हैपन इज द हिप रीजन। यही फ्रैक्चर अगर किसी यंग पेशेंट में होता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो उसे मैं स्टेबल करने के लिए उसमें रॉड डाल देता हूँ विद अ स्क्रू, ताकि वो उसको पकड़ सके, वो अच्छी स्टेबल फिक्सेशन देता है। जबकि यही अगर छोटी हड्डी, सेम हड्डी उस जगह से टूटी है बट इन अ ऑस्टियोपोरोटिक बोन, सेम वे आप देख सकते हैं जैसे पुराने में फिक्सेशन यंग हेल्दी सॉलिड बोन में किया था, सेम वे इसमें भी फिक्सेशन हुआ, बट बिकॉज हड्डी खोखली है वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा, ये स्क्रू ऑटोमेटिकली बैकआउट हो जाती, तो उस केस में फिर मुझे कूला रिप्लेस करना पड़ता है, आधा कूला रिप्लेसमेंट करते हैं। क्योंकि हमें बहुत कॉमनली ये मालूम है कि हड्डी की स्ट्रेंथ कमजोर है कंपेयर टू दी स्ट्रेंथ ऑफ मेटल रॉड जो हमने डाली है, तो वो मेटल की रॉड कई बार खोखली हड्डी में कट थ्रू कर देती है, हड्डी के बीच घुस जाती है। अगेन उन सबको हमें ठीक करने के लिए रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो इस सब सिनेरियो को देखते हुए हमें नॉर्मली इन ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स कई बार हम डायरेक्टली ये वाली सर्जरी कर देते हैं जिसमें हम हिप को रिप्लेस करते हैं। Common other scenario is the fracture neck of femur, which is very common even in young, even in elderly. Young patients में जब भी ये टूटता है तो मैं सिंपल या तो 3 स्क्रू लगा के या एक प्लेट के जरिए इसको स्टेबल कर सकता हूँ, बिकॉज बोन इज वेरी सॉलिड एंड उसको ग्रिप करने के लिए ये 3 पेच भी सॉलिड है। बट अगर वो हड्डी इतनी खोखली है कि वहां पे मेरे ये 3 पेज का होल्ड नहीं होगा, तो मुझे वो कूला बदलने की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने आज कुछ देखा बेसिकली व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोटिक बोन इज मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स एंड फ्रैक्चर मैनेजमेंट मेरी खराब होने लग जाती है, जिसके लिए मुझे उसको और अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ता है। So this is all that is from my side regarding osteoporosis and how I deal with osteoporosis. So coming back to where we started, why is it
now a public health problem. ये basically India में worldwide it is now a concern because the basic cause is lack of awareness about this problem, lack of healthy diet including calcium and vitamin D intake. तो आई होप आज के मेरे इस लाइव सेशन से आप लोगों को कुछ इनपुट्स मिले होंगे, हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ एंड व्हाट सप्लीमेंट काइंड ऑफ सप्लीमेंट यू शुड टेक एंड हाउ we can handle a patient who has osteoporosis. So coming to the famous proverb, prevention is better than cure. So live a healthy life with healthy maintenance of healthy and strong bone. Thank you. So I would just like to open it for any questions. If you have, I would be happy to answer those questions. I have few questions on the screen. The first one is from Mr. Prashant, and he has asked a very important one, and it is one of the most commonly asked questions in my practice as well. What is the difference between osteoporosis and osteoarthritis? तो ये मैंने ना मतलब एंटिसिपेट किया था, कोई ना कोई जरूर पूछता है बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन. सो ये मैंने एक स्लाइड भी बनाई थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो इट इज समथिंग लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, अभी जैसे हमने सुना, ऑस्टियोपोरोसिस इज हड्डी को खोखला कर देती है, which increases its potential for a fracture because of खोखलापन. On the other hand, osteoarthritis क्या है? Osteoarthritis is simple, like every joint in our body is covered with a cartilage lining या झिल्ली जिसको हम बोलते हैं. जिस तरह उम्र के साथ हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस हर ऑर्गन में आते हैं, उसी तरह ये कार्टिलेज में भी आते हैं. जब वो कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, नीचे की हड्डी एक्सपोज होना शुरू हो जाती है, तो आपस में फ्रिक्शन के कारण ये हड्डी रगड़ खाने लगती है. समथिंग लाइक दिस इज व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. नॉर्मल बोन में ये कार्टिलेज कवरिंग होती है. व्हेन दिस कार्टिलेज कवरिंग गेट्स इरोडेड एंड द सबकॉन्ड्रल बोन इज एक्सपोज्ड, रगड़ खाने के कारण जो पेन आती है, that is what we call as osteoarthritis. So that is the main difference between osteoporosis and osteoarthritis, and the management is totally different depending on what stage of osteoarthritis you are in. The management varies from patient to patient. So taking a few more of the questions. ओके मिस्टर पंकज की तरफ से एक क्वेश्चन था, कैन यू सजेस्ट हाउ फ्रीक्वेंट एंड हाउ लॉन्ग कैल्शियम सप्लीमेंट इज रिक्वायर्ड. सी blindly to recommend how long or how frequent calcium supplementation is required would be a wrong suggestion. But yes, normally depending on how bad your BMD or your DEXA scan reports are or how पोरोटिक योर बोन इज, वो हमें नॉर्मल एक्सरे करने पे भी पता चल जाता है आपकी बोन कितनी ऑस्टियोपोरोसिस है. एंड वी डू टेस्ट, बैटरी ऑफ टेस्ट. हमें जैसे पता चलता है कि कितनी आपकी हड्डी खोखली हो रही है, उसके हिसाब से नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कैल्शियम. बट रफ एस्टिमेट वुड बी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 1000 से 1500 मिलीग्राम डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज कैटेगरी यू आर. उसके हिसाब से समवेयर अराउंड 500 milligram of calcium supplementation per day is the best way out. एंड अगर उससे ज़्यादा की सप्लीमेंटेशन है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गिव more than 500 milligram की अगर रिक्वायरमेंट है, in 2 divided doses rather than taking a single tablet of 1000 milligram, and for a duration of around minimum of 2 months in a stretch, then a gap of say around 15-20 days, again 2 months. So in that same manner you can continue for around 6 months.
So depending on how bad your osteoporosis is, other medical things are required as well, right? So let's take someone else's. In osteoporosis, walking or exercise, which is better? सुभाष नागपाल जी ने ये क्वेश्चन पूछा है. देखिए, सबसे पहली चीज, ऑस्टियोपोरोसिस आपकी कितनी है, दैट वुड डिसाइड विच इज बेटर. अगर सुभाष जी आपकी ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट, तो प्रोबेबली walking is out of the way, then probably exercises are better. So if we are talking about prevention of osteoporosis, probably exercises in the sense of walking for daily 30 minutes per day is good enough to prevent osteoporosis. But अगर osteoporosis बहुत significant है, जिसमें हमें पता है there is a elderly patient with increased propensity for fractures, probably walking with the help of aids, either a walker or a stick support, and exercises to build the muscles is a sensible option, right? So probably osteoarthritis and not, okay, सुभाष जी ने चेंज किया, ओके, osteoarthritis and not osteoporosis. सुभाष जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगेन आपने वो पूछा, ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉट ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस में डेफिनेटली बोथ हैव देयर ओन रोल. एक्सरसाइजेस प्लस वॉकिंग, दोनों का अलग अलग रोल है ऑस्टियोआर्थराइटिस में. सिंपल लॉजिक, आप जब भी वॉक करते हैं, आपका लोड पूरा ट्रांसफर हो रहा है ऊपर वाली हड्डी से नीचे वाली हड्डी की तरफ. एक्सरसाइज करके आप मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मसल, सम ऑफ द लोड इज शेयर्ड बाय द मसल. तो एक्सरसाइज करके आप मसल को शेयरिंग में ला रहे हैं, लोड ऑन द जॉइंट इज रिड्यूस्ड. तो मसल बिल्डिंग का अपना सिग्निफिकेंट रोल है. वॉकिंग का अलग रोल है, जितना आप वॉक करते हैं उतना आपको न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं आपके जॉइंट्स को. तो यस, बोथ हैव इक्वल एंड सिग्निफिकेंट रोल इन मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो आपको बिल्कुल वॉकिंग प्लस exercises is important in osteoarthritis. Secondly, in osteoarthritis, probably we'll have another Facebook live for management of osteoarthritis. उसमें आप और ज़्यादा सुनेंगे इसके बारे में, हाउ डू वी मैनेज इट. बट यस, अभी के लिए एक्सरसाइजेस, probably things which need to be done and which are to be avoided would be, आपको क्रॉस लेग ज़मीन पे बैठना अवॉइड करना चाहिए, स्क्वाटिंग अवॉइड करना चाहिए. वॉकिंग इज़ वेरी गुड, साइकिलिंग इज़ वेरी गुड. स्क्वाट्स एंड लंजेस जो जिम में करवाते हैं, दे आर बैड फॉर योर नीज. क्रॉस trainers in the gym are bad for your knees. So this is in short what is required and what is not required for arthritis. तो यशपाल जी ने क्वेश्चन पूछा, डज एवरीवन नीड विटामिन डी सप्लीमेंट? यशपाल जी, probably it is again a very important thing. yes, विटामिन डी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है कैल्शियम की अपटेक इनसाइड द बोन्स में, एंड हमारा ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट इज inadequate without a vitamin D supplementation. But we have to be very careful because vitamin D कमी जितनी खतरनाक है उतनी उसकी टॉक्सिसिटी भी इम्पोर्टेंट है. बिकॉज एक्सेस ऑफ विटामिन डी अगर बॉडी में हो जाता है तो वो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ट्रीट करने के लिए, जिसमें हमें पोस्ट डायोरेसिस करके आपके बॉडी से निकालना पड़ता है. So the best way out is get your vitamin D level tested. Depending on what your level is, उसके हिसाब से हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करते हैं. बिकॉज आज के इस दौर में जहाँ हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, प्रॉबेबली एवरी थर्ड पर्सन इज विटामिन डी डेफिशिएंट. बिकॉज जो विटामिन डी हमें नेचुरली बॉडी बनाती है फ्रॉम सनलाइट, उसके लिए वी नीड at least 80% of the body surface exposed for more than half an hour
बिफोर 9 o'clock, बिकॉज यूवी रेज बिफोर 9 o'clock इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो वाली पड़ रही है, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल आजकल. तो yes, everybody does require, but blindly सबको नहीं ले लेना चाहिए. Depending on what your blood level of vitamin D is, you should get a prescription of vitamin D and then take supplementation of vitamin D. पाठक जी ने पूछा क्या 25 की एज में विटामिन डी लेना चाहिए? So probably I have answered that question. Yes. ऑस्टियोपोरोसिस होने पर क्या करना चाहिए? प्रॉबेबली अंकित आप शायद लेट ज्वाइन किए, इतनी देर में मैंने सारा यही बताया था ऑस्टियोपोरोसिस में हमें क्या करना है क्या नहीं करना. थैंक्स सर. डॉक्टर हैज एडवाइस फॉर साइकिलिंग, इज इट बेटर? डेफिनेटली सुभाष जी, साइकिलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. पंकज पांडे जी ने पूछा व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ HLA-B27 पॉजिटिव. Pankaj ji, though this is totally out of the context of what we are managing today, probably a one-to-one conversation on this would be very very helpful. But HLA-B27 अगर पॉजिटिव हैं तो वो एंकलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, जिसकी ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन कितना जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, कितना सिवियरिटी है, उसके हिसाब से हम इस बीमारी को मैनेज करते हैं. So probably one-to-one conversation or an appointment with me and one-to-one interaction, we would be able to handle this problem in a much sensible and proper manner. Prince की तरफ से क्वेश्चन था, just want to know that there is any surgical cure for osteoporosis. As such, there is no surgical cure for osteoporosis, but yes, our surgical managements in variety of diseases do change according to the degree of osteoporosis your bone has. अगर वो बहुत ज़्यादा खोखली होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं सर्जिकली. प्लस ऑस्टियोपोरोसिस को इम्प्रूव करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिवली भी मैं अपने पेशेंट्स को कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे देता हूँ, इंक्लूडिंग ड्रग्स, जैसे मैंने बताया था, इंजेक्शन विच हेल्प इन फास्टर बोन फॉर्मेशन, ताकि हड्डी बाद में जुड़ सके. एंड अब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, बोथ फॉर फ्रैक्चर मैनेजमेंट एंड फॉर रिप्लेसमेंट. वी हैव अ वैरायटी ऑफ न्यू लॉकिंग प्लेट्स फॉर मैनेजिंग फ्रैक्चर्स. एंड रिप्लेसमेंट में भी अगर हड्डी बहुत ज़्यादा खोखली हो तो हम कई बार सीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ अनसीमेंटेड वंस. रिसेंटली हमने लास्ट 2 वीक्स बैक या सर्वोदया ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी एक सेम ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर नेक फीमर का पेशेंट थे, उनका भी सेम इसी कारण से हमें सीमेंटेड कप करना पड़ा था, बिकॉज हड्डी बहुत खोखली थी जहाँ पे अनसीमेंटेड नहीं कर पा रहे थे. तो द आंसर टू दिस वुड बी नो, सर्जरी इज नॉट द क्योर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, बट हमारा ट्रीटमेंट प्लान डेफिनेटली चेंज हो जाता है इन ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट. So probably I suppose I would have answered most of the questions. Yeah, probably if we don't have any more questions, I would like to close the session now. And if you have any doubts or any concerns regarding osteoporosis and bone health and its management, I would be more than happy to answer all those queries. You can either share your queries or send me messages on the same link, or you can call me for an appointment in the numbers provided below. Thank you and have a great day. Maintain good bone health and take care. Thank you.